صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، قرآن شریف میں آئے۔ اللہ نے دن کو کمانے کے لیے اور رات کو آرام کے لیے بنایا، مگر کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے آرام کو قربان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنے کے لیے ابھی تک یہاں پر حاضر ہیں۔ صحابہ کرام بھی تھے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں کوٹ کرنے، یاد کرنے اور دوسروں تک فارورڈ کرنے میں لگے رہتے تھے۔ ایک 1024 بائٹس کا ایک کے بی ہوتا ہے، 1024 کے بی کا ایک ایم بی بنتا ہے، میگا بائٹ۔ 1024 ایم بی کا ایک جی بی بنتا ہے، گیگا بائٹ۔ 1024 جی بی کا ایک ٹی بی بنتا ہے، ٹیرا بائٹ۔ 1024 ٹی بی کا ایک پی بی بنتا ہے، پیٹا بائٹ۔ 1 ملین بلین ڈاٹا آف انفارمیشن اسٹوریج کرنے کی چھمتا اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائی اور اسے مکلف کیا ہے کہ آپ سب سے بہترین امت ہیں۔ یہ کنتم خیر کا جو لفظ ہے وہ بتا رہا ہے کہ اور بھی امت تھی، اور بھی عورتیں نبیوں کے زمانے میں مردیں گزرے ہیں، مگر وہ افضل نہیں تھے، ہم افضل ہیں۔ اور افضلیت کی وجہ ہماری ذات نہیں بلکہ ذات مصطفیٰ ہے، چونکہ ہمارے نبی سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور اس کو آسان لفظوں میں اگر میں بتاؤں تو سائنسدانوں نے لکھا our solar system is made up one star that is sun and 8 planet Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and 146 moons۔ جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں اس میں سب سے بڑا سورج ہے، 3,33,000 گنا زیادہ بڑا ہے سورج دھرتی کی بنسبت۔ 13 لاکھ دھرتی سورج میں فٹ ہو سکتی ہے۔ 146 چاند ہے، ہم لوگ ایک ہی چاند کو دیکھتے ہیں۔ ہم لوگوں نے عالم کے کورس میں پڑھا تھا، نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے منع کرے تو اسے جزئی کہتے ہیں، اور منع نہ کرے تو اسے کلی کہتے ہیں، اور چاند کو کلی ہی پڑھایا گیا تھا۔ جس گلیکسی میں ہم رہتے ہوئے دیکھتے ہیں اس میں سب سے بڑا سورج ہے۔ 8 منٹ کچھ سیکنڈ میں سورج کی روشنی دھرتی پہ پہنچتی ہے۔ سورج کی رفتار کو اپولو کہا جاتا ہے، اسی اپولو کی طرف منسوب ٹائر ہے، کمپنی ہاسپیٹل ہے، رفتار کو بتانے کے لیے۔ اور اپولو کی باضابطہ عبادت کی جاتی ہے، پوجا ہوتی ہے۔ برف پوش زرتشت مذہب کی طرح ایک مذہب ہے جو برف میں، پہاڑ میں، اور وہ کہتے ہیں سب سے بڑا خدا سورج ہے۔ سوریہ نمسکار کا وجود ہوتا ہے اور انسان اس کی پوجا کرتا ہے۔ کفر پر مشیت کو جلال آیا۔ خلاق دو عالم نے 571 عیسوی عبداللہ کی پیٹھ سے، آمینہ کے بطن سے، مقام بیضا پیر کے دن صبح صادق، رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، لفظ محمد سے مسمى پیارے مصطفیٰ کو پیدا کیا، اور اسی نبی نے مقام صحبہ میں علی کی نماز کی خاطر سورج پر اپنی طاقت و قوت کا سکہ چلایا اور سورج سے کہا پلٹ۔
یہ پلٹ کہنا صرف سورج کے لیے آرڈر نہیں تھا، آکسفورڈ کا جواب تھا، کیمبرج کا جواب تھا، جے این یو کا جواب تھا، ایم یو کا جواب تھا، ڈکاترا کا جواب تھا، پروفیسر کا جواب تھا، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار والوں کے گال پہ زوردار تھپڑ تھا کہ تو جسے سب سے بڑا اپولو مانتا ہے وہ مصطفیٰ کا نوکر ہے، نوکر۔ جب سورج نوکر ہے تو مالک مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ اسی لیے ایک اور آیت بتاؤں، قرآن شریف نے سورج کو، نقیب اعظم ہندوستان صاحب بیٹھے ہوئے، سراج وہاجا کا، دہکتا ہوا سورج، اور چاند کو قمرم منیرا کا، چمکتا ہوا چاند۔ دہکتا ہوا سورج اور چمکتا ہوا چاند، عربی پہ غور کیجئے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ سراجم وہاجا، وہاجا کہتے ہیں دہکنے والے کو۔ سورج جب نکلتا ہے تو دہکتا نہیں ہے بلکہ وٹامن ڈی دیتا ہے، اور یہ وٹامن ڈی کے بارے میں سائنسداں لکھتے ہیں کہ یہ 1 منٹ سے لے کر 20 منٹ تک رہتا ہے، اس کے بعد میں وٹامن ڈی کی کیپیسٹی ختم ہونے لگ جاتی، کم ہونے لگ جاتی، یہ چھمتا ختم ہو جاتی۔ پھر اگر زیادہ دیر اسی سورج کے ریڈیشن میں آپ رہیں گے تو باڈی میں اسکن پرابلم آ جائے گا، کینسر پیشنٹ آپ ہو سکتے ہیں، کینسر ڈیزیز ہو سکتی ہے آپ۔ تو وہاجا کو ہٹا کے اللہ نے سراج کو لیا۔ قمرم منیرا، قمر کے 3 نام ہیں۔ جب شروع میں چاند نکلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہلال، اس لیے رویت ہلال کمیٹی بنتی ہے، رویت منیر کمیٹی نہیں بنتی، رویت ہلال کمیٹی بنتی ہے۔ جب چاند نکلا تو باریک سا ہوتا ہے ایسا آسمان میں، یہ ہے ہلال۔ دھیرے دھیرے چاند بڑھنے لگ جاتا ہے، جو بالکل فل پیک ہو جاتا ہے وہ راؤنڈ میں، تو اسے منیر کہتے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے گھٹنے لگ جاتا ہے، اس کے 28 منازل ہے، 28 منازل ہے۔ ایک دن میں چاند ایک جگہ رہتا ہے، پھر دوسرے دن دوسری جگہ، اسی میں سے ایک اقرب ہے جس کو قمر در اقرب کہتے ہیں۔ حاصل یہ کہ یہ سورج چاند جب مہینے کے اینڈ میں جاتا تو پھر دھیرے دھیرے باریک ہونے لگ جاتا جیسے نکلا تھا۔ قرآن شریف میں آیا حتی عادت کالعرجون القدیم، پہلے کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب جب نکلا تو باریک تھا، بیچ میں شباب پر، اور جب ڈوبنے لگا پھر باریک ہو گیا۔ تو چاند کی 3 حالت ہو گئی، کمزور حالت اور فل طاقتور حالت۔ اللہ نے کمزور حالت کو نہیں، طاقتور حالت میں سے منیر کو لیا، قمرم منیرہ میں منیر کو لیا۔ 2 لفظ ہو گئے، سراجم وہاجا سے سراج کو لیا، اور قمرم منیرہ سے منیر کو لیا، اور سراجم منیرہ نام مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ قرآن شریف میں آیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اس کا مطلب چاند بھی نبی کے نوکر اور سورج بھی نبی کا نوکر۔ اب چاند اور سورج ہی کے حوالے سے ایک بات اور بتا دوں، جب دنیا کے سامنے اسلام کا 15واں پارہ الف لام میم سیقول تلک الرسل لن تنالوا والمحصنات لا يحبوا واذا سمعوا ولو اننا قال الملأ واعلموا يعتذرون ما من دابة وما أبرئ ربما سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سے محققین نے یہ کہا ہمارے نبی رب کی بارگاہ میں گئے اور واپس آئے۔ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے اس نظریے کو ریجیکٹ کر دیا، نیگلیکٹ کر دیا، اگنور کر دیا، اور کہا دیٹ از ٹوٹلی امپوسیبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آکسفورڈ اور کیمبرج میں یہ پڑھایا گیا کہ اس کے لیے سورج سے زیادہ تیز رفتار ہونا چاہیے، اس کی رفتار، اس کی اسپیڈ روشنی سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اب ذرا میں سورج ہی سے پوچھ لیتا ہوں، اے سورج تو چمکتا کیوں ہے؟ تجھے روشنی کہاں سے ملی ہے؟ سورج بولتا من حیث ہی میں تو ڈارک تھا، نبی نے بھیک میں روشنی دی تو میں چمک رہا ہوں۔ چاند بولتا ہے من حیث ہی میں بھی بلیکنیس تھا،
अपने दामन को नबी की बारगाह में फैलाया, या रसूल अल्लाह सब लोग आपसे भीख मांगते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, तो थोड़ी सी चमक मुझे भी दे दीजिए ना। नबी ने थोड़ी सी चमक दी चांद को, आज तक उसकी चांदनी बाकी है। पता ये चला सूरज को रोशनी मिली नबी के सदक़े में, चांद को रोशनी मिली नबी के दर से। जब भीख में रोशनी मिली तो उसकी रफ्तार का ये आलम है, तो जिस मुख्तार ने भीख दिया उनकी रफ्तार का क्या आलम होगा। नारे तकबीर, नारे। और वो दलील ये है कि 1687 ईस्वी में न्यूटन ने कहा था कि जमीन के अंदर ग्रेविटी है, और उसने दलील ये कब दी थी, जब जमीन से पत्थर उठा के ऊपर फेंका, एप्पल उसके सर पे गिरा। वो सोचा कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, डायरेक्ट स्ट्रीट पे, ओ उधर क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं गया, आसमान की तरफ क्यों नहीं गिरा, नीचे की तरफ क्यों आया, वो भी सीधा सीधा। मेहनत और मशक्कत से उसने कहा जमीन के अंदर ग्रेविटी कशित थिकल है, जमीन की जिन्स से जो चीज है वो रिटर्न जमीन पर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक पत्थर उठाए ऊपर फेंके, हाथ की ताकत जब तक पत्थर में है ऊपर परवाज करेगा, हाथ की ताकत खत्म, पत्थर नेचुरली नीचे की तरफ आ जाएगा, कोई फेंकेगा नहीं उसको, नेचुरली नीचे की तरफ आएगा फितरतन। ऐसे ही मिट्टी फेंके, जब तक मुअस्सिर है आपकी ताकत वो मिट्टी ऊपर जाएगी, जो ही ताकत खत्म मिट्टी नेचुरली नीचे आ जाएगी। लेकिन आप रोशनी फेंके तो वो नीचे नहीं आएगी, ऊपर चली जाएगी नेचुरली हय्यिज तबई की तरफ, अपनी जिन्स की तरफ। हवा को आप ऊपर फेंके, हवा नीचे नहीं आएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ जो शख्स मालदा में पैदा हुआ, लंदन में सेटल हो गया, चंद सालों बाद ईद का दिन है, VVIP लाइफ है, मगर कोने में बैठ के रो रहा है। ब्रो व्हाई आर यू क्राइंग, हे आई रिमेंबर माय विलेज, मुझे घर की याद आ रही है, वो गली, वो नदी, वो बच्चे, वो झाड़, वो पौधे, वो बारिश, वो चश्मे, वो नाले, वो दरियारे, वो तैयारे, वो अजार, वो अबहार, वो क्लाइमेट्स, वो नानी, वो दादियां, वो सब याद आ रही है। लाइट नहीं रहती गांव में तब भी मजा आता है, वहां VVIP लाइफ है, तब भी कोने में बैठ के रो रहा है। मतलब नेचुरली ग्रेविटी, कशिते थिकल, हय्यिज तबई की तरफ खिंचाव। इसी तरीके से एक जानवर को अगर आप मंडी की तरफ ले जाए, उसके ऊपर अनाज रख दे, गेहूं, चावल, नए मंडी की तरफ ले जाए, रास्ता बताना पड़ेगा बैलगाड़ी को, वापस मंडी में माल को खाली कर दे और अपने घर की तरफ लगा दे, वो सीधा अपने खूंटे की तरफ आता है। नेचुरली कशित ग्रेविटी, हय्यिज तबई का खिंचाव। अगर ये बात समझ ली तो अब पॉइंट सुने। मैं दुनिया के इंसानों से सवाल करना चाहता हूं, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वतन असली क्या है, नेटिव पैलिस क्या है, हय्यिज तबई क्या है। अगर कोई कहता हमारे नबी का वतन असली मक्का है, मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली मदीना है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी इग्नोर करता, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। फिर नबी का वतन असली है क्या, हदीस नूरी के अंदर आया, नबी का वतन असली कायनात की कोई शय नहीं थी, खल्लाक़े दो आलम ने नबी को पैदा करने के बाद अपने कुर्बे खास में रख लिया। कुर्बे खास में जब सूरज ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, मकान नहीं है, जमान नहीं है, जन्नत और जहन्नम नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है, न अर्श आज़म है, न तहतु सरा है, बस अल्लाह है। अल्लाह ने अपने नियरेस्ट में रख लिया, कुर्बे खास में रख लिया। पता ये चला नबी का वतन असली कुर्बे मौला है, नबी का नेटिव पैलिस कुर्बे मौला है। अब मैं न्यूटन को कहूंगा आ जाओ, डार्विन तुम भी आ जाओ, जरकाली तुम भी आ जाओ, केपलर तुम भी आ जाओ, टेको बराही तुम भी आ जाओ, आइंस्टाइन तुम भी आ जाओ, स्टीफन कर्लियन तुम भी आ जाओ। नबी का नेटिव पैलिस और नबी के मेराज में जाने का फलसफा और रीजन को मुशाहदा कर लो। कायनात की कोई शय नहीं थी, बस अल्लाह है, और वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। रब ने नबी को पैदा करके कुर्बे मौला में रख लिया, अपने कुर्ब में, और उसी नबी को जब पैदा किया तो प्यारे मुस्तफा जब 571 ईस्वी में मक्के में पैदा हुए, 9 महीने
शुहूद पे जलवागर होते। पता ये चला इस नबी को कुर्बे मौला से आने में 9 महीने लगे, मगर यही मुस्तफा उसी मक्का से जब रब की बारगाह में जाते हैं तो 9 महीने नहीं लगे, 9 दिन नहीं लगे, 9 घंटे नहीं लगे, 9 मिनट नहीं लगे, 9 सेकंड नहीं लगे, 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा में हमारे नबी शबे मेराज वतन असली में चले गए थे, क्योंकि खिंचाव रब की तरफ से था, ग्रेविटी रब की तरफ से, कशिश तिकल रब की तरफ से। और ये मैं नहीं बोलता, तमाम साइंसदानों का बाप 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तमाम सवालों का जवाब बनकर सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान जलवागर होते, इस मोमेंट की तर्जमानी करते, कलम से कहते लिख वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, वहां फलक पर यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे, उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बच रहा था बाड़ा, क्या चाँद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा तमव्वुजे बहरे हू में उभरा, दना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। ग्रेविटी को बताते हुए आला हजरत ने कहा इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का, तनज़्ज़ुलु में तरक्की अफ़ज़ा दना तदल्ला के सिलसिले थे। तो ग्रेविटी नेचुरली कशिश खिंचाव रब की तरफ से, इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का, खिंचाव रब की तरफ से था। लिहाजा मेराज की बात साबित हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आए, सन हिजरी 7 में 7 बादशाहों को लेटर लिखा। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, आप सबसे बेहतरीन उम्मत है, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, ये ड्यूटी है। नबी ने भी भलाई का हुक्म दिया और बुराई से रोका। 7 बादशाह को लेटर लिखा नबी ने। वो बादशाह ये थे नज्जाशी, मकूकिस, फारस, कैसर रूम, मुंदिर बिन सावी, साहिब यमामा, हाकिम दमिश्क। अच्छा एक अंदर की बात बताऊं, 7 बादशाहों को लेटर लिख के नबी ने 7 सहाबी को बादशाह की तरफ रवाना किया, और 7 मुल्क में, और उस मुल्क की जुबान सहाबी नहीं जानते थे, मगर नबी ने खत दिया और कहा जा कैसर रूम को दे दे। तो वो सहाबी खत लेके जाते थे तो वही की भाषा बोलने लग जाते थे, वही की भाषा बोलने लग जाते थे। उसमें से एक बादशाह को जब खबर लगी कि यार कोई आदमी है जो ये कह रहा है मैं रसूल हूं, उसने इंक्वायरी की ये आदमी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ये याद रखिएगा, जब कोई नई चीज आती है तो इंसान डाउटफुल होता है। ऐसे ही जाइए, ऐसे यहाँ पर हुजूर शोएबुल औलिया के साहबजादे कह दे मैं एक मस्जिद बना रहा हूँ, शोएबुल औलिया मस्जिद, कौन देगा पैसा? कुछ लोग सोचेंगे क्या मालूम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। इसलिए शशोपंज में 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा के बाद में हजरत मेरी तरफ से 1 लाख रुपया, दूसरा दिन दूसरे आदमी मेरी तरफ से 5 लाख, तीसरा दिन तीसरे आदमी मेरी तरफ से 10 लाख, चौथा दिन चौथे आदमी मेरी तरफ से 20 लाख। किसका ज्यादा है? 20 लाख ज्यादा है या 1 लाख ज्यादा है? जो लोग मेरी तकरीर सुन चुके हैं वो कहेंगे 1 लाख ज्यादा है। हकीकत ये 20 लाख ज्यादा नहीं है, 1 लाख ज्यादा है। उसकी दलील दे रहा हूं। अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह। पता आप लोग को दुनिया में सबसे पहला मर्डर किसने किया? काबिल ने हाबिल का मर्डर किया, वो भी लड़की के चक्कर में।
काबिल ने हाबिल, और दोनों आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। और कयामत तक जितने मर्डर होंगे उसका सवाब, उसका गुनाह काबिल को जाएगा। जितने मर्डर होंगे कयामत तक उसका गुनाह किसको जाएगा? काबिल को। उसको भी गुनाह मिलेगा जो मर्डर करता है, लेकिन उधर भी गुनाह ट्रांसफर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग की ना उसने। अद्दाल अला सू कफाइलिही, बुराई का रास्ता शुरू करने वाला चलने वाले की तरह। इसीलिए लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये बहुत आम हो गया है। मैं यहाँ एक बात खास कर दूं, ये अमेरिका का कल्चर है। वहां पर शादियां नहीं होती है, वहां सिर्फ जीएफ से काम चलता है, और जितनी लड़कियां हैं वो बीएफ से काम चलाती है। और हर वीक एंड पर, हर संडे को बीएफ चेंज भी हो जाता है, जीएफ चेंज भी होती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस्लाम दिया और उलमा को दिया, और हम लोग निकाह करते हैं। उलमा का एहसान है कि निकाह मालदा में अभी जिंदा है। कयामत से पहले निकाह का सिस्टम भी खत्म हो जाएगा, और जीएफ के जरिए बच्चे पैदा होंगे, और इस तरह हरामियों की अच्छी खासी तादाद भारत में हो जाएगी। और यही हरामी लोग नबी की तौहीन करेंगे, क्योंकि उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीन लफ्ज़ आया कुरान शरीफ में। जिसने नबी को गाली दी थी, जब उसकी इंक्वायरी की गई तो पता चला वो बाप का बेटा है ही नहीं, वो चरवाहे का बेटा है। और आज भी पूरी दुनिया में जो नबी को गाली दे रहा है वो बाप का नहीं होता है। यहां से एक अपनी तरफ से एक बात मैं बता रहा हूं, जो नबी को गाली दे उसके नुतफा में खता है, और जो वली को गाली दे उसके लुकमा में खता है। बनता है इंसान का सुल्बे पेदर से शिकमे मां में आता है, उसको नुतफा कहते हैं। और जिससे वो वजूद बिल्ड करता है उसको लुकमा कहते हैं। अगर नबी को गाली दे रहा है तो नुतफा में खता है, और वली को गाली दे रहा है तो लुकमा में खता है। जरूर माँ बाप ने हराम का खाना खिलाया होगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप निगाह उठा के देख ले, एक भी ओरिजिनल सुन्नी सहीहुल अकीदा गौसे आजम को गाली नहीं देता है, वलियों को गाली नहीं देता। वलियों को गाली देने वाले ये दूसरे डिपार्टमेंट के लोग सब हैं। वो समझ जाए हराम का खाना खा रहे या हलाल का खाना खाए हुए। हासिल ये पहला मर्डर काबिल ने किया हाबिल का। कयामत तक जितने लोग मर्डर करेंगे गुनाह उधर ट्रांसफर होगा। जिसने अच्छा काम किया 1 लाख रुपया, दूसरे दिन जिसने 5 लाख दिया ना, पहले वाले का 6 लाख हो गया। 5 लाख उसका, 1 लाख उसका। तीसरे दिन जिसने 10 लाख दिया ना, पहले वाले का 10 और 5 15 और 1 16 लाख हो गए। चौथे दिन जिसने 20 लाख दिया तो 20 लाख वो और 16 लाख ये, 20 और 16 हो गए आपको 35-36 लाख रुपए। 20 और 16 36 होते ना, 36 लाख रुपए किसका हो गया? जिसने 1 लाख दिया, क्योंकि स्टार्टिंग की। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने एक घर बनाया और उस घर में दस्तरखान लगाया। बुखारी शरीफ की हदीस है। उस दस्तरखान में एक से एक नेमतें रखा, और उस घर के अंदर दाखिल होने की दावत देने के लिए प्यारे मुस्तफा को जलवगर किया। महबूब आप जाइए, लोगों को दावत दे दीजिए। नबी की बात जिसने माना वो घर में गया और खूब खाया पिया, और जिसने नहीं माना वो घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ। वो घर जन्नत है, खाना जन्नत की नेमतें हैं। अब अगर मिसाल समझ ली आपने, अल्लाह ताला ने भेजा, उन्होंने जन्नत की दावत दी। लोगों से कहा, जिन लोगों ने नबी की बात मानी वो लोग जल्दी जल्दी जन्नत में दाखिल होने लगे। जो जितनी देर से माना उतनी ही देर उनका उसी पोस्ट पर वो फाइज हुआ। अगर आपने ये मिसाल समझ ली कि 1 लाख ज्यादा होता है 20 लाख से, तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया इस्लाम का, यहीं से ये भी समझ में आ जाएगा कि सबसे बड़े सहाबी कौन है।
حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر فاروق اعظم یا حضرت عثمان غنی یا آج کا کوئی آدمی حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو جہل نے کہا نبی جھوٹے ہیں، عتبہ نے کہا نبی جھوٹے ہیں، شیبہ نے کہا نبی جھوٹے ہیں، پتھروں کی بارش ہوئی ہے، لاٹھی چارج ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تہمت لگی ہے۔ ان تمام تر حالات میں کفر و شرک، تکذیب و تشکیک کی چھاتی کو پھاڑ کر صداقت مصطفیٰ کا جھنڈا سب سے اونچا، سب سے پہلے کسی نے لہرایا تو وہ کوئی اور نہیں، ابو قحافہ کا بیٹا حضرت ابو بکر صدیق۔ لوگ اسلام لائیں گے، ثواب ابو بکر کو ملتا رہے گا، اس لیے ابو بکر کو کوئی اوورٹیک نہیں کر سکتا ہے۔ سب سے افضل و اعلیٰ نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کیا، 7 بادشاہوں کو بھلائی کا حکم دیا، برائی سے روکا۔ ایک بادشاہ تھا قیصر روم اور دوسرا بادشاہ ہے کسرا، ایران کا کسرا۔ یہ دونوں کی قدر تفصیل ضروری ہے اور اسی سے ادب مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کا اندازہ لگائے۔ کسرا، اس کے پاس جب لیٹر پہنچا نبی کا، کرسی سے نیچے اترا اور جلال میں آ گیا اور نبی کے خط کو ایسے لے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ کے ہوا میں پھینک دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک خبر پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مزق کتابی مزق اللہ ملکہ، اس نے میرے خط کو پھاڑا، اللہ اس کے ملک کو پھاڑ دے گا۔ چند سالوں بعد بیٹے کے ہاتھوں کتے کی موت مارا گیا، دوبارہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں بنا ہے۔ اب آئیے دوسرے بادشاہ کی طرف لے چلتا ہوں۔ قیصر روم کے پاس خبر پہنچی ہے، نبی کا خط لے کے قیصر روم کو دیا۔ قیصر روم ایمان تو لانا چاہ رہا تھا مگر پبلک کے ڈر سے ایمان نہیں لایا کہ بادشاہت خطرے میں پڑ جائے گی، یہ کرسی چلی جائے گی، یہ سیاست چلی جائے گی، یہ ملک چلا جائے گا۔ پبلک کے ڈر سے اور ملک کی لالچ میں وہ ایمان نہیں لایا مگر نبی کے خط کو چوما، ہونٹوں سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ لگایا اور سونے کی ڈبیا میں خوشبو لگا کے گھر میں اونچی جگہ رکھا۔ یہ ایمان نہیں لایا مگر ادب خط مصطفیٰ کی بنیاد پر 500 سال تک اس کی نسلوں میں بادشاہت منتقل ہوتی رہی ہے۔ پتہ یہ چلا یہ مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے، مومن تو مومن، اگر کافر بھی نبی کا آدر کرتا ہے تو رب قدیر ملک کا پرائم منسٹر بنا دیتا ہے۔ رسالت، مجھے بہت خوشی ہے، میں تھوڑی دیر اور گفتگو کروں گا بنیادی بات بخاری شریف کے حوالے سے۔ آپ لوگ اتنی دلجمی سے سن رہے ہیں، یہ مجھے بہت اچھا لگا۔ اچھا، ابھی جو اختلاف ہوا نا، بہت اچھی بات ہے۔ اختلاف زندوں کی صفت ہے مگر لڑتے رہ جانا یہ جانوروں کی صفت ہے، ختم کر لینا یہ انسانیت کا کام ہوتا ہے۔ ابھی ختم بھی ہو گئے نا، کبھی مردے کو دیکھا آپ نے لڑتے ہوئے، اے میرے بازو میں کیوں آیا تو چل ہٹ؟ مردہ نہیں لڑتا، زندہ لڑتا، مگر لڑتے رہنا یہ جانوروں کا کام ہے۔ الحمدللہ حضور نے سمجھایا، یہی تو کمال ہے خون مصطفیٰ کا، یہی تو کمال ہے خون غوث اعظم کا۔ ان کے آباء و اجداد نے حضرت امیر معاویہ سے مصالحت کر کے لاکھوں لوگوں کو مرنے سے بچا لیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں امام حسن امیر معاویہ سے مصالحت کر کے، اور امام حسن کے دوسرے بھائی نے اپنی جان کو قربان کر کے اسلام کو بچایا ہے، اسلام کو بچایا۔ حاصل 7 بادشاہوں کو لیٹر لکھا، اس میں سے قیصر روم نے سوچا یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ اس نے 11 سوال کیے ہیں، کس سے؟ ابو سفیان سے۔ 11 سوال بخاری شریف میں آیا، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے۔ سوال دیکھیے اور یہیں سے اپنے آپ کا جائزہ لے۔ پہلا سوال، کیف نسبہ فیکم، اس کا نسب کیسا ہے؟ کہیں وہ حرام کا تو نہیں، اس کے ماں باپ بغیر نکاح کے تو نہیں رہتے ہیں؟ کیف نسبہ، ان کا نسب کیسا ہے جس نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں؟ اب ان کا نسب کیسا ہے یہ کون بتا سکتا ہے؟ جس نے پوری دنیا
के इंसान को देखा हो, वही बता सकता है ना, क्योंकि मालदा में कौन इंसान कैसा है ये कौन बताएगा। लामोहल्ला एक ऐसा शख्स चाहिए, एक ऐसी जात चाहिए जिसने सब नस्ब को देखा हो, सब मर्द को, सब औरत को, है ना। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हर इंसान को देखा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते मैंने पूरी दुनिया को तलाशा तो कुरैश से अच्छा कोई खानदान नहीं मिला, और कुरैश में हर कबीले को तलाशा तो बनी हाशिम से अफजल किसी को नहीं पाया, और बनी हाशिम में हर घराने को तलाशा, अब्दुल्ला से अच्छा कोई घर नजर नहीं आया। इसीलिए अल्लाह ने, अच्छा एक और बात बताऊं, नबी के आबा व अजदाद में हजरत हव्वा, माँ की तरफ से कहा हजरत हव्वा, और बाप की तरफ से हजरत आदम, ये हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना से लेकर हजरत आदम और हजरत हव्वा तक एक भी माँ बगैर निकाह के नहीं है, बल्कि बगैर निकाह तो बगैर निकाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादी चीज है, एक भी माँ नाशुक्रा भी नहीं है। नबी का नूर जिस जिस माँ के पेट में आया है वो माँ फर्मा बरदार, शुक्रगुजार। इसकी एक दलील दूंगा सिर्फ मैं, बरसों बाद हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा को छोड़ के आ गए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, गए मिलने के लिए, शादी कर लिए थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। दरवाजा नॉक किया, है कोई अंदर? अंदर से खातून निकली, आप कौन? बोले मैं इस्माइल की बीवी। इस्माइल कहाँ? बोले वो शिकार करने गए। आपका क्या हाल है? बोले बहुत बुरा हाल है, कभी खाना मिलता कभी नहीं मिलता, शिकार मिलता तो खाती हूँ, शिकार नहीं मिलता तो भूखे रहती हूँ। बोले इस्माइल आए तो मेरा सलाम बोलना दरवाजा बदल दो। ये बोल के चले गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, सलाम पेश किया, हुलिया बयान किया। वैसे भी नबी खुशबू से पहचान लेते हैं कि हमारे अब्बू आए थे। कहा सलाम पेश किया, कहा और कुछ कहा दरवाजा बदल दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं आप मेरे निकाह से आजाद हैं, आप जा सकते हैं। दरवाजा बदल दो का यही मतलब है, बीवी को तलाक दे दिया हमने। बरसों बाद फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, फिर दरवाजे को दस्तक दी, अंदर से खातून, आप कौन? कहा मैं इस्माइल की बीवी। इस्माइल कहां? बोले शिकार पर। क्या हाल है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। कहा आए तो मेरा सलाम बोलना, और बोलना दरवाजा अच्छा है बाकी रखो। लफ्ज पे गौर कीजिएगा। उसने कहा बहुत बुरा हाल है, कभी शिकार मिलता तो खाते हैं, नहीं मिलता तो भूखे रहते हो। इस खातून ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अगर अल्लाह खाना न दे तब भी उसका शुक्रिया, और खाना दे तब भी उसका शुक्रिया, शुक्र अदा किया। अब देखें, जाहिरन तो ये लगता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोल के चले गए, इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, बीवी ने बताया एक साहब आए थे, सफेद दाढ़ी थी, बहुत खूबसूरत थे, आपको सलाम कहा और ये कहा दरवाजा अच्छा बाकी रखो। कहा आप मेरे अब्बू को पसंद है, आप मेरे निकाह में रहेंगे। जाहिरन वो तो नबी की बीवी रही, नबी की बहू भी रही, ये तो दिखने वाली बात है, लेकिन एक अंदर वाली बात है जो कोई कोई जानता है, सबको नहीं पता। वो अंदर की बात ये है कि उसने कहा बहुत बुरा हाल है, शुक्रिया नहीं अदा किया, शुक्रगुजार नहीं थी। अल्लाह ने उसको साइड करवाया। दूसरी खातून आई निकाह में, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने उसको बाकी रखा। क्यों बाकी रखा? क्योंकि उसी के पेट से वाया 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 मक्के की धरती पर तमाम नबियों के नबी प्यारे मुस्तफा को पैदा करना मकसूद है। हजरत इब्राहिम के बाद जितने नबी आए वो सब के सब इसहाक अलैहिस्सलाम से है, एक भी इस्माइल अलैहिस्सलाम की पीठ से नहीं है, सब इसहाक अलैहिस्सलाम से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, ये सब के सब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पीठ से है। इस्माइल की पीठ से एक ही नबी, और वही नबी तमाम नबियों के नबी है, रसूलों के रसूल है, इमामुल अंबिया है। गोया उस खातून ने रब का शुक्रिया अदा किया, अल्लाह ने बदले में प्यारे मुस्तफा की दादी बना दिया। मैं क्या कह रहा था? हजरत आमिना से लेकर हजरत हव्वा तक एक भी माँ ऐसी नहीं है जो नाशुक्रा हो। इसका मतलब मालदा में जो औरतें ये चाहती है मेरे घर में भी कोई अल्लाह का वली पैदा हो,
तो उसे चाहिए कि अपने शौहर का शुक्र अदा करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे। इस साल ड्रेस नहीं दिलाया तो क्या हुआ, पिछले साल वाला तो है ना। मेरे पास 5-6 जोड़ी है, इस साल नहीं लेते हैं, किसी गरीब को दे दीजिए, किसी बेवा को दे दीजिए, किसी मुतल्ला को दे दीजिए। आज सब्जी से नहीं चटनी ही रोटी खा लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, क्योंकि हमारे पास रोटी और चटनी तो है। कुछ लोग ऐसे हैं जिसको रोटी भी नसीब नहीं है। अगर ये शुक्र का जज्बा हो तब जाके वक्त का कोई वली उसके घर में पैदा होता है। ये एक बुनियादी चैप्टर है। कैफा नसबुहु, जवाब दिया अबू सुफियान। अच्छा जवाब कौन दे रहे हैं, मोमिन नहीं थे उस वक्त, अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे, तब वो गवाही दे रहे हैं। हुआ फीना दू नसब, वो बहुत आला नसब के आदमी है। किन के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। कौन इंक्वायरी कर रहा, बादशाह, और इसी से फैसला करेगा वो कि वो आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। कौन, कैसर रोम, नबी के बारे में इंक्वायरी कर रहा। दूसरा सवाल, फहल काला हादा अल-अव्वल क़ब्लकुम अहदुन क़त्तु क़ब्लह फहल क़ाला हादल क़ौल फ़ीकुम अहदुन क़त्तु क़ब्लह, क्या इससे पहले भी किसी ने ये कहा उनके खानदान में कि मैं नबी हूं। अबू सुफियान ने कहा ला, नहीं, क्योंकि अगर परदादा लकड़दादा ये कहे कि मैं नबी हूं तो हो सकता है बेटा भी बोल दे मेरा दादा नबी था तो मैं भी नबी हूं। इसलिए इन्होंने कहा ला, कोई नहीं, क्योंकि हजरत इस्माइल तक किसी ने नबूवत का दावा नहीं किया था। कोई नबी है ही, हजरत इस्माइल तक। यहीं से यह भी पता चला कि बाप बड़ा हो तो बेटा भी बड़ा होगा, कोई जरूरी नहीं है। बाप बहुत बड़ा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम बहुत बड़े नबी है, मगर उनका बेटा काफिर। कुरान शरीफ में आया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तुम्हारा रिश्तेदार है ही नहीं। इसका मतलब किसी का बेटा काफिर हो जाए तो रिश्तेदारी खत्म। रिश्तेदारी बनती है मोहब्बत मुस्तफा से, ईमान से, ताल्लुक बिल मुस्तफा से रिश्तेदारी बनती है। तीसरा सवाल, फहल कान मिन आबाइही मिन मलक, क्या उनके खानदान में कोई बादशाह गुजरा, का नहीं। चौथा सवाल, फअशराफुन नास इत्तबऊहु अम दुअफाउहुम, उनको मानने वाले, उनकी बातों पर अमल करने वाले कौन लोग हैं, अमीर या गरीब। ये सवाल देखें, अशराफुन नास इत्तबऊहु अम दुअफाउहुम, उनकी पैरवी कौन लोग कर रहे हैं, गरीब, अरब के गरीब लोग या अरब के अमीर लोग। अबू सुफियान ने जवाब दिया दुअफाउहुम, अरब के गरीब लोग, ज़ईफ लोग। इसका मतलब मालदा में ईमान अमीरों का मजबूत नहीं, उससे ज्यादा गरीबों का ईमान मजबूत होता है। ईमान मजबूत होने के लिए करोड़पति न होना जरूरी नहीं, ईमान मजबूत होने के लिए आशिक मुस्तफा होना जरूरी होता है। और वो झोपड़पट्टी में रहने वाला भी करोड़पति से अफजल व आला हो जाता है। क्या आपने देखा नहीं, मस्जिद की मुसल्ला इमामत पर एक भंगी का बेटा भी कलमा पढ़ के आलिम बन जाता है, तो बड़े बड़े रईस उसके पीछे हुआ करते हैं, वो मुसल्ला इमामत पर होता है, मुसल्ला इमामत पर होता है। पांचवा सवाल, अयजीदून अम यनकुसून, उनकी तादाद, नबी के मानने वालों की तादाद बढ़ रही है या घट रही है। अबू सुफियान ने जवाब दिया यजीदून, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। कुरान शरीफ में आया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि वलौ करहल मुशरिकून, जिस दीन को नबी लेकर के आए धीरे धीरे सलौली सलौली तमाम दीनों पर गालिब आ जाएगा। अगरचे कुफार और मुशरिकीन पसंद नहीं करे तब भी दिल से एक पंडित का यही एतराफ करेगा, इस्लाम से बढ़ के दुनिया में कोई सिस्टम नहीं है। और आज हो रहा है, जब किसी मुल्क में रेप ज्यादा होता है ना, सब आवाज उठाते हैं इस्लाम का कानून लागू कर दो, इस्लाम का कानून लागू कर दो। इस्लाम याद आती है सब, क्योंकि इस्लाम का जो सिस्टम है उससे अफजल वाला कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता। उसकी वजह क्या है, इसकी सिंपल लॉजिक है। भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, ठीक है। हर मुल्क का संविधान इंसान लिखता है ना, और इंसान के सामने पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। योर पास्ट लाइफ इज वेस्ट पेपर, योर प्रेजेंट लाइफ इज न्यूज़पेपर, योर फ्यूचर लाइफ इज क्वेश्चन पेपर।
So read and write carefully, otherwise your life is tissue paper. बहुत फेमस सेंटेंस है, इंसान पास्ट लाइफ ऐसा नियम बनाया पास्ट को देख के कि फ्यूचर में कोई चोरी नहीं करे, यही होता है ना, लेकिन फ्यूचर के देखा हुआ नहीं होता, फ्यूचर को देखता नहीं है क्या होगा, इसलिए संविधान को बदलने की जरूरत पड़ती है। मगर इस्लाम का सिस्टम जिसने बनाया है वो अल्लाह है, और अल्लाह की बारगाह में पास्ट भी प्रेजेंट है, फ्यूचर भी प्रेजेंट है, इसलिए अल्लाह के कानून को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह यज़ीदून अम यनकुसून यज़ीदून। छठवां सवाल, फहल यर्तद्दु अहद मिनहुम सख्ततन लिदीनी, कोई दाखिल होने के बाद मुर्तद हो जाता है, इस्लाम से फिर जाता है, नफरत करने लग जाता है इस्लाम में दाखिल होने के बाद? अबू सुफियान ने कहा, अल्लाह जो एक बार घुसता है इस्लाम में दोबारा निकलता नहीं है, बल्कि उमैया बिन खल्फ जैसे लोग मार मार के बिलाल की हालत खराब कर दे तब भी वो छोड़ने को इस्लाम तैयार नहीं होता है, छोड़ने को, एक बार जो दाखिल हो गया वो पलटने को तैयार नहीं होता। सातवां सवाल, फहल कुंतुम तत्तहिमून बिल-किज़्ब क़ब्ल अन यक़ूल मा क़ाल, क्या तुम लोग कभी उन पर झूठ का इल्जाम लगाए थे? सवाल देखिए, जिसने नबूवत का ऐलान किया यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलाने नबूवत से पहले तुम लोग कभी झूठ का इल्जाम लगाए थे उन पर? अबू सुफियान ने कहा ना, इसका मतलब नबी ऐलान करने से पहले भी झूठ नहीं बोलते थे। नबी जब से पैदा हुए तब से लेकर 40 साल तक झूठ बोलना हराम है, ये कुरान में आया ना, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कुरान में आया, लेकिन कुरान आया कब? 40 साल के बाद, 40 साल के बाद आया। पैदाइश से लेकर 40 साल तक नबी ने एक बार भी झूठ नहीं बोला, एक बार भी झूठ नहीं बोला। दैट्स रीजन कि वो जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। इसी वजह से मैं आप लोगों से कहता हूं, घर से निकले ना और बच्चा बोले अब्बू कहां जा रहे हैं, उनको सच बता। अगर आपने कहा जा रहे हैं कलकत्ता और कहा मुंबई जा रहा है, जा रहे हैं मार्केट में 2 घंटा के बाद में आएंगे और कहा 5 मिनट के बाद आ रहा हूं, ये झूठ है। और इस झूठ का असर बच्चे पे भी पड़ता है, सिर्फ बच्चे पे नहीं, अगर बच्चा माँ के पेट में हो तब भी असर पड़ता है, क्योंकि माँ के पेट में बच्चा माँ के क्लाइमेट के हिसाब से पलता है ना, तो माँ जो सुनती है बच्चे के दिमाग की डायरी में वही लिखाना शुरू होता है। इसकी एक बहुत भारी दलील दे रहा हूं मैं, मालदा के सुन्नी मुसलमानों, जो बच्चा बहरा पैदा होता है वो पैदाइशी गूंगा भी होता है, इसको नोट करें आप। जो बच्चा पैदाइशी बहरा हो, सुनेगा नहीं तो वो बोलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि दिमाग जो है ना ये प्लेन डायरी है, कानों के रास्ते मीम अलिफ जबर मा नून गुन्ना मा जाता है तो डायरी में लिखाता है। इंसान बड़ा होके वही बोलता है जो लिखा हुआ है। जब बहरा है तो सुना नहीं, तो इसीलिए वोकैबुलरी गई नहीं, दिमाग में दिखाया नहीं, इसलिए आ वाह करता है, वो प्रोनाउंस नहीं करता। जुबान है, सनाया उलिया है, सनाया सुफला है, किनारा जुबान दाढ़ है, बीच जुबान तालू है, नोक जुबान ऊपर के दांतों की जड़ भी है, नोक भी है, सब कुछ है। जहां से हुरूफ निकलते हैं वो है, मगर बोलता नहीं है। क्यों? वो वोकैबुलरी नहीं गई। इसका मतलब क्या हुआ? जब बच्चा माँ के पेट में हो तो आप माँ के पास जाए और माँ से कहिए कि ये कुरान शरीफ है और इसको पढ़िए आप। अगर माँ को पढ़ने में तकलीफ हो रही है तब कहिए कि ये मोबाइल निकालो और इसमें यूट्यूब पर जाओ और लिखो कुरान शरीफ माँ कंजुल ईमान। सीधे माँ आटा गूंद रही है, आटा में पानी मिलाई और उधर कंजुल ईमान चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। ये कानों के रास्ते सीधा बच्चे के दिमाग में लिखाना शुरू हो जाता है। जब कुरान शरीफ सुन लिए तो अब दूसरी बार जब चावल बना रही है माँ, बच्चा पेट में है, उसमें बोले उवैस रजा कादरी कलाम आला हजरत चलना शुरू होगा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जान नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। अगला कलाम चलेगा, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अगला कलाम चलेगा, लम याते नजीरों कभी नजरी मिथले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज के ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। माँ के पेट में बच्चा है 9 महीने तक, माँ कभी कंजुल ईमान, कभी हदायत बख्शिश, कभी सफीना बख्शिश, कभी सामान्य बख्शिश सुन
कोई जाकिर नायक उसे अहले हदीस नहीं बना सकता। बच्ची पैदा हुई, कोई तस्लीमन नसरीन उसे कनीज़े फातिमा की लिस्ट से खारिज नहीं कर सकती है। ये तकरीर में ये इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप लोग बोलेंगे बहुत अच्छी तकरीर की ना। जिसने बोला अजहरी साहब ने अच्छी तकरीर की, उसने जलसे पे पानी फेर दिया। अमल करना है अपने घर पे जाके, कल से बल्कि आज ही से अमल करना है इस बात पर। तो जो सुनता है बच्चा, इसलिए देखिएगा एक और दलील दे दूं, बच्चा भी सबसे पहली बार वही गाली देता है जो बाप गाली देता है, जो भाई गाली देता है, जो माँ गाली देती है। हंसने में भी बच्चा कॉपी करता है, चलने में भी बच्चा कॉपी करता है। बहुत सारे लोग पीठ दे क्या बता देंगे ये फला का बच्चा है। क्लाइमेट का असर है, माहौल का असर है, ये फितरत है इंसान की। क्या वजह है? ये जो आप पपैया देख रहे हैं ना, पपैया क्या है? मिट्टी है भाई साहब। एक बीज जमीन में लगाए और इतने, ये 1 कुंटल पपैया कहां से आ गया? वो जमीन है, मिट्टी है जिसने पपैया का रूप धार लिया है। कैसे? सुहबते बीजे पपैया की वजह से। उस मिट्टी को बीज, पपैया की बीज से निस्बत हुई तो मिट्टी पपैया बन गए। मिट्टी ही पपाया बनी ना, अंगूर बनी ना। ऐसे ही क्लाइमेट, बच्चा माँ बाप घर के ऊपर जाता है। सवाल 7वां सवाल, फल कुंतुम तत्तहिमून बिल किज़्ब, तुम लोग झूठ का इल्जाम लगाते थे? बोले नहीं। 8वां सवाल, फहल यग़दुर, कभी धोखा दिया उसने? अबू सुफियान ने कहा ला, कभी नहीं धोखा दिया उन्होंने, ऐलान नबूवत किया। 9वां सवाल, फहल कातलतुमूह, तुम लोग उनसे लड़ते हो कि नहीं लड़ते? बोले हाँ लड़ते हैं ना, जंग लड़ते हैं। बोले तुम लोग जीतते हो या हारते हो? बोले कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, कभी जीतते कभी हारते हैं। 10वां सवाल, कैफ कान क़ितालुकुम इय्याहु, जंग कैसी होती है? अल हर्बु बैनना व बैनहु सिजाल, कभी हारते कभी जीतते हैं। 11वां सवाल, माज़ा यामुरुकुम, वो किस चीज का हुक्म देते हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं नबी हूं? अबू सुफियान ने कहा यक़ूल उअबुदुल्लाह वहदह वला तुश्रिकू बिही शैअन वत्रुकू मा यक़ूलु आबाउकुम व यअमुरुना बिस्सलाह वस्सदक़ा वस्सिद्क़ वस्सिफ़ात वस्सिलह वलअफ़ाफ़ वस्सिलह। वो ये कहते हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसकी जात में किसी को शरीक न ठहराओ, और बाप दादा की बातों पर मत चलो। वो ये कहते हैं बाप दादा की बातों पर। ये बहुत सारे लोग हैं जो नाय परंपरा है, मेरे दादा की शादी ऐसे हुई तो मैं भी ऐसे ही करूंगा, डीजे भी लाऊंगा, डांस भी होगा। कुछ इतने नालायक मुसलमान हैं, आर्केस्ट्रा ले आते, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, ढोल ले आते। यहाँ के उलमा को चाहिए कि वो बैठ करके एक प्लान बना ले, जिसने शादी में डीजे लाया उसका निकाह नहीं पढ़ा होगा, और जिसने पढ़ाया मालदा से बाइकाट। प्लान कर ले सब लोग मिलके, जिसने निकाह पढ़ाया बाइकाट। उसी तरीके से जिसने जहेज में डिमांड की 5 लाख रुपया लूंगा तब शादी करूंगा, कोई निकाह नहीं पढ़ाएगा। क्योंकि अगर जहेज की डिमांड करेंगे तो जो गरीब लोग हैं वो कहां जाएंगे? फिर वही गरीब बच्चियां जवान हो जाएगी तो लामुहाला शादी तो करेंगे नहीं आप। फिर जो करप्शन होगा उसका जिम्मेदार वो लड़की नहीं, हम भी है, कुछ % हमारी तरफ भी आता है। इसलिए प्लान कर ले, कोई दहेज नहीं मांगेगा। और आप में जितने बूढ़े बैठे हुए जिनके बच्चे की शादी होने वाली है, वो तो अभी से इरादा कर ले कि मैं भी अपने बेटे की शादी ऐसे करूंगा जैसे हजरत अली ने शादी की है। बेटी वाले तमन्ना कर ले हजरत फातिमा ज़हरा की तरह शादी करूंगा, अज़्म मुसम्मम करें, इरादा कर ले, माहौल चेंज हो जाएगा। माहौल हमसे है, हम माहौल से नहीं है। बाप दादा जो कह रहे हैं उसे छोड़ दो। बाप दादा, एक अच्छी बात याद आ रही मुझे, एक घर में शादी हो रही थी, बिल्ली बहुत परेशान कर रही थी। बाप ने क्या किया, मेहमानों को डिस्टर्ब हो रहा था, बिल्ली को जाके खूंटे से बांध दिया। जब पोते की शादी हुई और दादा मर चुका था, जब शादी हुई तो वो बिल्ली तो मर गई थी। पोते ने अपने घर की शादी में शहर से बिल्ली ढूंढ के लाया और खूंटे से बांधा। भाई ऐसा क्यों कर रहे? बोले मेरे दादा की सुन्नत। ये हंसने की नहीं, समझने की बात, ये हकीकत बोल रहा हूं, क्योंकि मैं कॉमेडी वाला फकीर नहीं, ये फैक्ट है। अपने बाप दादा ने जो किया हम उसी हिसाब से नहीं चलेंगे, जो इस्लाम बोलता है हम उसके हिसाब से चलेंगे। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा, मेरी तकरीर का टाइम खत्म हो गया, वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले ये बता दूं,
आपके दिमाग में ये आएगा कि मौलाना लोग बहुत सारे हैं, कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता। अच्छा, फिरके बहुत सारे हो गए और सब बोल रहे हैं राफजी भी जन्नती, शिया भी जन्नती, और सब कुरान है, सब कुरान पढ़ते हैं। तो यहाँ एक बात बताता हूं मैं जो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखे कुरान शरीफ है, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है ना, यहाँ लिखा हुआ है वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नह अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ। यहाँ जो ये आयत है, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है, इसको कहते हैं नक्शी कुरान। बहुत बुनियादी बात बताने जा रहा हूं, फिरके कैसे बन जाते हैं। इसको कहते हैं नक्शी कुरान। नक्श लिखा हुआ है, वाव सीनाली जबर सा राजे री, ये लिखा हुआ जो दिख रहा है इसको नक्शी कुरान। और ये जो मैंने पढ़ा वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, इसको कहते हैं लफ्जी कुरान। ये जो बोला ना हमने मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, इसको कहते हैं लफ्जी कुरान। दो कुरान हो गए, नक्शी कुरान लिखा हुआ, जो बोला आपने वो लफ्जी कुरान। अब इसका माना है दौड़ो अपने रब की रहमत की तरफ। इसको कहते हैं, माना जो आया ना दिमाग में, इसको कहते हैं मानवी कुरान। समझ में आ गई बात? कुरान कितने हैं? 3। नक्शी कुरान जो लिखा हुआ है, लफ्जी कुरान जो पढ़ा, मानवी कुरान जो दिमाग में आया। अगर आपका वुजू नहीं है तो कुरान का हाथ में आना हराम। गौर कीजिएगा, वुजू नहीं है तो कुरान का हाथ में आना हराम, लेकिन पढ़ना जायज है। नक्शी कुरान हराम बगैर वुजू के, और अगर गुस्ल नहीं है तो पढ़ना भी हराम, लफ्जी कुरान भी हराम। 2 कुरान हो गए हराम। वुजू नहीं तो नक्शी कुरान हाथ में नहीं आ सकता, गुस्ल नहीं तो लफ्जी कुरान जुबान पर नहीं आ सकता, मोहब्बत मुस्तफा नहीं तो मानवी कुरान दिमाग में नहीं आ सकता है। कुरान छूने के लिए, कुरान छूने के लिए वुजू करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वुजू है। आज तक नकीब आज़म हिंदुस्तान साहब, आज तक बगैर वुजू के मैंने तकरीर नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक। ये फखरियत और से नहीं कह रहा हूं, ये मेरी आदत है। हमने इसको अहम समझा है, हमने दीन समझा है। अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अगर आपका वुजू नहीं है, कुरान नक्शी हाथ में नहीं आ सकता, गुस्ल नहीं है तो जुबान पर नहीं, मोहब्बत नहीं है तो दिमाग में नहीं आ सकता। अब बात समझ में आ गई कि अशरफ अली थानवी क्यों गुमराह हो गया, रशीद अहमद गंगोही क्यों गुमराह हो गया, अबुल आला मौदूदी क्यों गुमराह हो गया, जाकिर नायक क्यों गुमराह हो गया। क्योंकि इल्म तो था मगर मोहब्बत मुस्तफा नहीं थी। इसलिए कुरान हाथ में भी आया, जुबान में भी आया, मगर दिमाग में नहीं आया। दिमाग में आने के लिए मोहब्बत मुस्तफा चाहिए, और मोहब्बत मुस्तफा की है नकी अली खां की पीठ से कश्यपाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान आशिक मुस्तफा नहीं इश्क मुस्तफा बन के पैदा हुए। इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इरशाद फरमाते हैं करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा या रसूल अल्लाह, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। इसलिए आला हजरत के जमाने में देवबंद के उलमा भी है, सहारनपुर के उलमा भी है, दिल्ली के उलमा भी है, भोपाल के उलमा भी है, बेशुमार उलमा है। कुरान को सबसे ज्यादा किसी ने समझा तो वो बरेली का कलंदर इमाम अहमद रजा खान। नारे दोनों तरफ है ना, दारुल उलूम दोनों के पास है ना। किताब जो आलिम का कोर्स में जो किताब चलती है, कुदूरी है, नूरुल इज़ा है, विकाया है, हिदाया है, दरसे निजामी और आउट ऑफ दरसे निजामी की बहुत सारी किताब है, रद्दुल मुख्तार है, दुर्र मुख्तार है, समरकंदी है, मुहीत है, ये दोनों जगह सुन्नी के यहाँ भी और देवबंदी के यहाँ भी। मगर फर्क इतना है कि वो कहता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए, और ये कहते हैं तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। किताब दोनों तरफ है। उसका कहना है कि नबी किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं, और इनका कहना है जहां बानी आता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे।
اس کا کہنا ہے کہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے تو امت کو کیا بچائیں گے؟ اور ان کا کہنا ہے ایک میں کیا میرے عشیہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، ہے تو کریمہ تیرا۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ جو بالفرض بعد زمانہ نبوی کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا، یعنی نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ اور ان کا کہنا ہے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے۔ کتابیں دونوں کی طرف۔ ایک اور آخری فرق بتا دوں، ایک سوال ہوا کافر کا جھوٹا، جھوٹا تو سمجھتے ہی ہم سب لوگ، کافر کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک؟ کافر کا جھوٹا، یہ فتویٰ گیا اشرف علی تھانوی کے پاس، اس نے کہا رد المحتار کا حوالہ دیا سور الآدمی طاہر ولو کان کافر، کافر کا جھوٹا پاک ہے، آدمی کا جھوٹا پاک ہے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، مومن ہو یا کافر ہو۔ کس نے کہا؟ اشرف علی تھانوی۔ وہ فتویٰ گھومتا رہا، گھومتے اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچ گیا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کافر کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک؟ اب دیکھیں جواب دیکھیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کافر کے جھوٹے کی 3 قسمیں ہیں، اگر وہ شراب پی کر اور مردار کھا کے جھوٹا کیا ہے تو جھوٹا حرام ہے، اور اگر شک ہو کہ کلی کر لیا ہے تو مشکوک کا جھوٹا مکروہ ہے، اور اگر یقین ہو کلی کر لیا ہے تو جھوٹا تبرکن پیا جاتا ہے، اور کافر قابل تبرک نہیں، اس لیے جھوٹا نہیں پیا جائے گا۔ کتاب دونوں طرف ہے، یہاں محبت مصطفیٰ ہے اس لیے جواب کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اپنی بچی کو، اپنے بچے کو اسکول کے ساتھ ساتھ مدرسے میں پڑھانا ہے، اور صرف عربی نہیں اردو بھی پڑھانا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اسکول ہی اپنی ہونی چاہیے، اپنی اسکول ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہماری بچیوں کا یونیفارم جو اسکرٹ رہتا ہے، گھٹنے دکھتے رہتے ہیں، اے بھائی یہ ایسا یونیفارم کیوں بنایا؟ ہماری بہنیں جا رہی ہے اس میں پڑھنے کے لیے۔ Who are you interfere in my personal school؟ میری اسکول ہے، میری مرضی، بولنے بھی نہیں دے گا آپ کو، اس کے بائیلاز میں وہی لکھا ہوا ہے، وہی ماننا پڑے گا۔ کیا کرنا چاہیے؟ اپنی اسکول، اپنا بائیلاز، اپنا سسٹم۔ اور اپنی اسکول ہوگی تو ہم یونیفارم میں لڑکوں کے لیے کرتا پاجامہ ٹوپی رکھیں گے، اور لڑکیوں کے لیے نقاب فاطمہ الزہرا رکھیں گے۔ اپنی اسکول میں ہم سنڈے کو چھٹی نہیں، فرائیڈے کو چھٹی کریں گے، تاکہ ہمارے بچے جمعہ کی اہمیت کو سمجھے۔ 1400 سال پہلے نبی مسجد نبوی میں خطبہ دیتے تھے، آج بھی جمعہ میں نائب نبی وہی حدیث بیان کرتے جو 1400 سال پہلے نبی بیان کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے یونیفارم، کرتا پاجامہ اور نقاب، اور اس کی اسکول میں جن گن من ادینایک سے شروع ہوتا نا، ہماری اسکول میں شروع ہوگا پریئر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور سی بی ایس ای پیٹرن پڑھائیں گے، کالج بھی ہمارا، بچیاں بچے اوپر بھی جائیں، لیکن یہی بچے جب بچیاں سی بی ایس ای پڑھیں گے ہمارے یہاں بھی، لیکن ساتھ میں ہم تعمیر ادب، انوار شریعت، قانون شریعت، بہار شریعت، فتاوی رضویہ، کنز الایمان بھی چلائیں گے، ایک سبجیکٹ۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بچہ ڈاکٹر بنے گا بھی تو ذاکر نائک نہیں بنے گا، ڈاکٹر امین میاں بنے گا، ڈاکٹر سجاد عالم مصباحی بنے گا، ڈاکٹر اشرف میاں بنے گا۔ بچی پڑھے گی لکھے گی تو تسلیمہ نسرین نہیں بنے گی، وہ کنیز فاطمہ الزہرا بنے گی۔ نرس بھی ہمارے ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں بچیوں کو نہیں پڑھا بہت ڈاکٹر بنائے نا۔ آپ کو پتا ہے یہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا 9 مہینے پورے ہو جاتے تو ہاسپیٹل میں جاتے سیدھا آپریشن کرتا، انڈر ٹیبل یہ پلان ہے کہ کنٹرول کرنا پاپولیشن کو، یہ آپ کو پتا ہی نہیں۔ اور پتا آپریشن کون کرتا؟ مرد کرتا۔ ہماری ماں اور بہنیں کپڑے اتار رہی ہے آپریشن کے لیے کافروں کے سامنے، ہماری غیرت مر چکی ہے۔ بھائی اپنی اسکول ہوگی تو ہم اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنائیں گے، اپنی بیٹی کو نرس بنائیں گے، اور ہماری بیٹی جب آپریشن کرے گی تو شریعت کے حساب سے کرے گی، اسلام کے حساب سے، کم مردوں کے اختلاط سے تو بچے گی۔ اس پر کوئی سوچنے کو تیار نہیں، ایک ایف ڈی 1 کروڑ کی، ایک پلاٹ 2 کروڑ کا، ایک اور مکان خرید لوں، یہ سب سوچ رہا ہے۔ اسکول میں کوئی انویسٹ کرنے کو تیار ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بزنس کی نیت سے کرے، لیکن کرے، بزنس کی نیت ہی، بزنس ہی کی نیت کرے نا، لیکن کرے۔
جب اپنا ہاسپٹل، اپنی زچگی ہاسپٹل. اچھا، ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ 9 مہینہ ہو گیا ابھی تک بچہ نہیں ہوا. بھائی کس نے کہہ دیا 9 مہینے کے بعد بچہ ہونا ضروری؟ کہاں لکھا ہے؟ بچہ ماں کے پیٹ میں 10 مہینہ بھی رہ سکتا ہے، 11 مہینہ بھی، 12 مہینہ بھی. امام شافعی ماں کے پیٹ میں 2 سال تک رہے. کتنے سال تک؟ اب ڈاکٹر کے پاس جا، سیدھا بولے گا آپریشن. اس کو کوئی مطلب نہیں ہے سسٹم سے، اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے، وہ چلایا ہی نہیں جاتا. کبھی اسلام کو ہم اور آپ سمجھیں، انشاءاللہ العظیم مجھے یقین ہے انقلاب آئے گا. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن شریف، حدیث شریف، فقہ شریف پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ باتوں کو سنا. مجھے یقین ہے کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.